Hello and welcome guys at my channel Finance at Home. So today's topic is we are continuing the process accounting, that is equivalent production. Okay, and one thing before starting the lecture, good news है, आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है. ओके, सो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ख़त्म मीन्स कैंसिल नहीं हुआ, तो हमें स्टिल पढ़ाई करनी है. तो मैंने एक टाइम टेबल स्टडी प्लान बनाया है जो मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, आपको अभी ऊपर पॉपअप करेगा, आप वो चेक कर सकते हैं. ओके, स्टिल आपको पढ़ाई करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं. अभी 2 महीने, आप 2 महीने में अकॉर्डिंग टू उस प्लान के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड वन थिंग, अगर आपको इतना टाइम दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दिया है. ओके, तो सही से यूटिलाइज़ कीजिए टाइम का. एंड वी आर स्टार्टिंग. सो ग्रैब योर नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स बिकॉज यू आर डूइंग अलॉन्ग विथ मी. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. ओके, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? ओके, दिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ completed यूनिट्स. मीन्स this term converts terms. What define this term is completed units. Okay, in other words it means converting incomplete production into units into its equivalent completed units. मतलब जो incomplete work है उसको complete work units के convert करता है. मतलब एक साल आप काम कर रहे, ठीक है, साल ख़त्म हो गया है बट आपका स्टिल वो वर्क चल रहा है. प्रोसेस अकाउंट में ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्रोसेस इसी साल हो गया, दूसरा प्रोसेस भी इसी साल हो गया, ऐसा नहीं होता है. ओके, मतलब जो भी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक ही बार में पूरा काम नहीं कर पाता. ठीक है, उसको स्टिल कुछ समय चाहिए रहता है, साल चाहिए, पीरियड्स लगते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए. तो वही है कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू अ कंप्लीटेड यूनिट्स. ओके, इन ईच प्रोसेस एन एस्टिमेटेड इज मेड ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क इन प्रोग्रेस. Okay, what is the meaning of work in progress? Work in progress, that work is still in progress. Okay, the work is not finished yet. Okay, a production schedule and a cost schedule will then be prepared. The work in progress is inspected and estimate is made of the degree of completion. So what is the meaning here? That work in progress, so here is the meaning that work is progress, how much work is done, so it's inspected through the made through the degree of completion, usually on a percent, that much, that 20% work has been completed, that then how much work is still left. तो कितना work in progress complete हो गया. You said that 20% work has been done, still 80% is left. Okay, that is the work saying this line. Okay, usually on a percentage basis. It is most important that this estimation is accurate possible because a mistake at this stage would affect the stock valuation used in the preparation of final account. Okay, see the final accounts. Okay, means when you will prepare final at the end of the year, accounting year, so it will not be a mistake because while making the final accounts, because you're making the final and you portray final accounts, there will not be any mistake. That's why you need this valuation equivalent to that, how much your work has been done, means how much your stock has been used and how much your stock is still work in progress. Okay, this formula of equivalent production is equivalent unit of work in progress, actual number of unit in process of a manufacture into the percentage of work, that actual number कितना unit process में है into the percentage of work completed. Okay, for example, if 20% work has been done on the average of 1000 units still in process, then the 1000 such unit will be the 200 completed होगी. ठीक है, इससे that if अगर 20% ख़त्म हो गया, वर्क हो चुका है, 1000 यूनिट अभी स्टिल प्रोसेस में है. ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो 1000 यूनिट में है इज़ इक्वल टू 200 कंप्लीटेड यूनिट. जो 1000 यूनिट, एक मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनने में 1000 यूनिट्स 1200 यूनिट्स लगते हैं. ठीक है, जिसमें से 20% वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड. ओके,
means 240 units has been in processed. Okay, means if you take 1200 units to complete the 240 units, okay, you take means you have need, if you need to complete 240 units, you have needs 1200 units to make 240 units of the product. Okay, the cost of work in progress will be equal to the 200 completed units. Okay, now we see the calculation of the equivalent production. ओके इसके आगे भी हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट अभी देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं. ओके, थ्योरी दिया हुआ तो थ्योरी पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टडी इफ द थ्योरी हैज़ बीन गिवन. ओके, state the opening work in progress in equivalent completed units by applying the percentage of work need to be complete the unfinished work of the previous year. Means if said that 80% degree of completion given for material, means 80% used in the previous year, rest 20% you have need to make it to complete it. To converting the incomplete to the complete production, you needs 20% more. Okay, see example. If the opening work in progress is 100 units which is 40% completed, then the equivalent unit, this will be the 60 units. Okay, and next 60 units we needs to complete the equivalent units. Add to a the number of units started and completed during the period, means जो स्टार्ट किए थे और जो कंप्लीट हो गया ड्यूरिंग दिस कैन बी फाउंड आउट बाय डिडक्टिंग द यूनिट्स इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम द नंबर ऑफ यूनिट्स पुट इन द प्रोसेस. At the above equivalent completed unit of closing work in progress, this can be found out applying the percentage of work done finished unit at the end of the period. Means यहाँ बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक में जितना बचा हुआ है, मान लीजिए जैसे 40 हो गया कंप्लीटेड हो गया, जितना बचा उतने को लेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक में जितना काम हो गया उस साल का, जैसे मान लीजिए ये 40 कंप्लीटेड हो गया, ठीक है, तो हम 40% लेंगे. ठीक है, अब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 10 200, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी इस पर काम चलेगा. तो ये ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 से आया है सर, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है. ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस 9200 इज़ फिनिश्ड गुड. यूनिट इज स्क्रैप्ड, इतना ख़राब हो गया 800 एंड नॉर्मल यूनिट इज स्क्रैप्ड. ओके, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट. ओके, क्लोजिंग स्टॉक 1800 दिया हुआ है. ओके, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया ओपनिंग स्टॉक का, मटेरियल 70, लेबर 60, ओवरहेड 60. मतलब पिछले प्रोसेस में, मतलब पिछले प्रोसेस में इतना कंप्लीट हो गया. अब रेस्ट हमें देखना है कितना हुआ. मटेरियल 60 40 40, इतना काम कंप्लीट हो चुका है साल के आखिरी में. ओके, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ओके, सो इसका फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे आएगा इनपुट, आउटपुट, यूनिट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. ओके, इसमें फिर बनेगा हमारा 2, क्योंकि एक यूनिट्स और कितना आपका डिग्री, मतलब कितना कंप्लीट हुआ है आपका. ओके, वर्क. आएगा परसेंटेज, यहाँ आएगा यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स. ओके, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक. ये आपका इनपुट था, कितना यूनिट्स था 1600, जिसमें से मटेरियल ओपनिंग स्टॉक का 70% डिग्री ऑफ कंप्लीशन था. मतलब अभी 30 हमें बताना है, कितना इनकम्प्लीट वर्क को कम्प्लीटली बताना है. तो कितना इनकम्प्लीट है हमारा 30, इसका कितना है 40, इसका कितना है 40. तो 1600 का 30% कितना होगा
480, 640, 640. ओके, अब आएगा नॉर्मल लॉस. सो नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस into minus closing stock into rate. ओके, सो 1600 आपका ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, प्लस 10,200 आपका वर्क इन प्रोग्रेस था, ठीक है. हमारा यूनिट्स इंट्रोड्यूस कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं लेंगे, एंड माइनस हमारे पास 1800 दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो कितना आ गया 10,000 इनटू कितना बोला है 1000. ओके, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस कितना हो गया 1000, ठीक है. फिनिश्ड गुड कितना होगा, फिनिश्ड यूनिट्स देखिए ट्रांसफ़र कर रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में 9200, जिसमें से 1600 ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7600. ओके, फिनिश्ड गुड है मतलब 100% वर्क कंप्लीट हो गया होगा. ओके, अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक 1800 दिया हुआ, उसने बताया कि 60% वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 60 40 40, तो 1800 का 60% दैट इज़ 1080, 720 720. ओके, टोटल करेंगे तो ये आएगा 12,000, यहाँ पे है 11,800. ओके, यह आएगा 9160, 8960, 8960. ओके, सेम प्रोसेस अकाउंट में हम क्या देखते थे कि जब नॉर्मल लॉस और फिनिश्ड यूनिट्स को प्लस करते, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है कंपेयर कर रहे डेबिट साइड में, तो इधर क्या आता है अब नॉर्मल गेन. ओके, हमने इनपुट्स इतना लगाया, ठीक है, इतना लगा, बट आउटपुट हमारा निकला 12,000, मतलब हमने ज़्यादा नॉर्मल लॉस कर लिया होगा. मतलब हमने जब कर रहे होंगे तो हम लोग ना फोकास्ट कर लिए होंगे ज़्यादा नॉर्मल लॉस. ओके, हमने ज़्यादा मान लिया होगा, इसलिए वजह से हमारा इनपुट कम आ रहा है और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, विच मीन्स ये हमें क्या हो रहा है अब नॉर्मल गेन. कितना 200, ठीक है. नॉर्मल गेन 100% होता है क्योंकि ये सब बियर करते हैं, ये हमारा कॉस्टिंग एंड P&L में जाता है, ठीक है. तो ये आ जाएगा 11,800, 8,960, 8,760, 8,760. ओके, तो ये हमारा बन गया, ऐसा बनता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर इज़ द क्वेश्चन, द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट. ओके, प्रोसेस अकाउंट बनाना है. 8,000 यूनिट्स एट द रेट 6 पर यूनिट, 4,800 दिया हुआ है. ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 12,000 यूनिट्स आया जिसके अमाउंट ये है. ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस इतना दिया हुआ इन यूनिट्स. नॉर्मल प्रोसेस लॉस इतना हो रहा है, क्लोजिंग इतना दिया. डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया, मटेरियल 1 का 100% कंप्लीट हो गया, मटेरियल 2 का 60% बचा, लेबर एंड ओवरहेड का 40% बचा, ठीक है. डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर यूनिट स्क्रैप्ड, जो यूनिट्स ख़राब हुआ तो उसका कितना डिग्री कंप्लीट होगी. मटेरियल्स के दोनों, मतलब यहाँ मटेरियल बोल रहा है तो मतलब ये दोनों जो मटेरियल लगे उसका दोनों में अगर हुआ है, इसमें तो हुआ नहीं होगा क्योंकि वो डिग्री कंप्लीट कर लिया. मटेरियल 2 में जो हुआ होगा ख़राब उसका 100% हो गया.
लेबर एंड ओवरहेड 50-50% रियलाइज़ कर लिए, ठीक है। फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक इतना मटेरियल 60%, लेबर एंड ओवरहेड इज़ 50%, ओके। स्क्रैप रियलाइज हुआ ₹1 पर यूनिट में। अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल ये दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोसेस अकाउंट, ओके, बनाना है जस्ट, ओके। यहाँ लिखेंगे हम लोग इनपुट, आउटपुट, यूनिट्स, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड, ओके। यहाँ परसेंटेज, यहाँ यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, ओके। सो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना, 800 था। ओपनिंग स्टॉक 800, इसका तो पूरा हो गया ख़त्म। इसका 40%, क्योंकि 60% डिग्री ऑफ कंप्लीट हो चुका है। 800 का 40, 320, 60, ये 60, ओके, 480, ठीक है। एंड देन सेकेंड है नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक 800, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो आया है दूसरे प्रोसेस से इस 1200 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 1800 इनटू रेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1100। मैं यहाँ कर देती हूँ शॉर्ट में, 800 प्लस 12,000 माइनस 1800 इंटू 10%, ओके, इज 1100, ठीक है। नॉर्मल लॉस रियलाइज हो जाता है, उसको बेच दिया जाता है स्क्रैप को। फिनिश्ड यूनिट्स कितना है, इस साल बनाए ट्रांसफ़र किए हैं 9700, जिसमें से 800 उसका ओपनिंग था, तो रियल में फिनिश्ड यूनिट्स कितने हैं, 8900 यूनिट्स फिनिश्ड है, तो मतलब पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक 1800 है, जिसमें से वो बोला है क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल 60% दिया हुआ है, मतलब ये आपका पूरा 100% होगा। 1800 ये 60% दिया हुआ है, और ये नेक्स्ट 50-50 दिया हुआ है, ओके। तो इसका 1800 का 60 1080, एंड इसका हो जाएगा 15 का 900, ओके। टोटल कर लेते हैं, टोटल आ रहा है 12600, ये टोटल है 12800, ओके। तो मतलब हमें अब नॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस को ऐड करेंगे, अब नॉर्मल लॉस हुआ है हमें 200 का, 12800, ठीक है। बोला जो फॉर यूनिट स्क्रैप मटेरियल 100% एंड द लेबर एंड ओवरहेड इज़ 50%, इसका तो 200। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 100% कंप्लीट हो गया मटेरियल 1। इसमें बोला है मटेरियल इसका भी कितना हो गया 100, 200, और इसमें बोला है 50-50 विच मीन्स 100 और 100 रियलाइज्ड हो गया। यूनिट स्क्रैप्ड जितना यूज हो गया इतना हो गया, ठीक है। अब ऐड प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1090, यहाँ पहले कर देते 10 1700, 10 300, 10 280 एंड 10 280, यह आ जाएगा 10500, 10380, 10380, ओके। अब निकालते कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स कॉस्ट ये क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है। इक्विवेलेंट कॉस्ट हमने अभी निकाला है, उससे मिलेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट,
मटेरियल वन का जो प्रोसेस 1 से आया था वो था 16,350। मटेरियल 2 का गिवन है 10,500। लेबर का गिवन है 2760 एंड ओवरहेड में है 16,670 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हुआ 1100। ओके, तो ये आ जाएगा 15,570। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिग्री ऑफ जो बोला है फॉर यूनिट स्क्रैप्ड, जितना यूनिट ख़राब हुआ था वो मटेरियल 100% यूज हो गया, लेबर एंड ओवरहेड 50% है, तो हमने लेबर में ना लेके नॉर्मल लॉस को यहीं पे ही कर लिया, माइनस कर लिया। ओके, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा ना दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा मटेरियल में से नॉर्मल लॉस को माइनस किया जाता है। ओके, इक्विवेलेंट कॉस्ट 10,900, 10,500, 10,380, 10,380, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5, 1, 2 एंड 1.5। एक और बार बोल देती हूँ, अगर यहाँ पे हमने इस ओवरहेड से क्यों माइनस किया, क्योंकि जो यूनिट स्क्रैप्ड हुआ था ना, ख़राब हुआ था, जिसमें से मटेरियल 100% वो हो गया, रिकवर्ड कर लिए, ठीक है। लेबर एंड ओवरहेड्स का जो लॉस था उसे रिकवर नहीं कर पाए, तो हमने जो लॉस हुआ था वो ओवरहेड में ही रिकवर, मतलब ओवरहेड से माइनस कर लिया है। ओके, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा ना दिया रहे, कुछ ना दिया रहे, जैसे बोल दिया मटेरियल 100% कंप्लीट नहीं है, तो हमेशा मटेरियल में से नॉर्मल लॉस स्क्रैप को माइनस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मटेरियल माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप। ओके, ठीक है। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यूनिट्स कितना अबनॉर्मल लॉस हुआ, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, उसके बाद टोटल कॉस्ट। ओके, मटेरियल 1, यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, ठीक है, यहाँ पे निकाले हम लोग ने यूनिट्स 200, इसका था 1.5, मटेरियल 2 का 200, ये था 1 रुपये का, लेबर 100 एंड ओवरहेड 100, ये था 2 रुपये का और ये था 1.5। इन लोगों को इनटू करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 300, 200, 200 एंड 150, इट कम्स टोटल 850। ओके, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी पता चल जाएगा कि हम इतना सब क्यों निकाल रहे हैं। ओके, ये स्टेटमेंट इससे निकाले कि हमें वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है और कितने का लॉस हुआ है हमारा, टोटल कॉस्ट पता करने के लिए हमने निकाला है। अब निकाल रहे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल 1 1800, मटेरियल 2 1080, लेबर 900 एंड ओवरहेड 900। ओके, ये था 1.5, 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये 5 पैसा 2700, 1080, 1800 एंड 1350, तो ये आ जाएगा 6930। ओके, अब बनाएंगे हम प्रोसेस अकाउंट।
प्रोसेस अकाउंट तो सिंपल है, हमने सीख लिया है कैसे बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट। पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, 800 था। 800 इंटू एट द रेट 6 रुपीज़ था, 800 इंटू 6 4800। टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 से आया था 1200 यूनिट्स जिसका अमाउंट था 12,6350, ठीक है। टू मटेरियल और लिए थे इस 10,500, ठीक है। टू मटेरियल का प्राइस हमें दिया है नीचे, टू मटेरियल टू लेबर इज़ 2760 एंड ओवरहेड इज़ 16670। यहाँ पे माइनस मत कर लेना क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लॉस लेंगे। बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट इज़ 1100। फिर क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1800 जिसका टोटल है कॉस्ट ये लेंगे 6930। अब नॉर्मल लॉस 200 था जिसका प्राइस है 850, हमने अभी निकाला है। टू ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा था 9700 फिनिश्ड गुड, ओके, ठीक है। और ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस कैसे आ जाएगा, जिसका टोटल है हमारा 12800, ठीक है। 12800 ये भी आ जाएगा 12800। इसका टोटल है हमारे पास 169,080। यहाँ पे भी हमारा कितना आना चाहिए, 69,080, ओके। इन लोगों को प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगा 6200। और एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और फिनिश्ड यूनिट्स, ओके। ओपनिंग स्टॉक में प्रीवियस ईयर्स में आपको मिला था 4800 रुपीज़ का कॉस्ट लगा था। इस साल बिकॉज आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क, स्टिल वर्क बचा था, तो हमारा मटेरियल 1 का कितना था 0, मटेरियल 2 का था 320 एंड लेबर 480 एंड ओवरहेड 480 इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितना आया है, इसका है 1.5, इसका है 1 रुपये, इसका 2, इसका 1.5, ओके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2000 हो जाएगा, ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 6800। और हमारा फिनिश्ड यूनिट्स कितना था 8900 जिसका कॉस्ट है 6 रुपये। 6 रुपये कैसे आया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, उसका टोटल था 6 रुपये, ठीक है। 8900 इंटू 6 इज़ 53,400। अब इन लोग को प्लस करोगे आपको 53,400 प्लस 6800 इट कम्स 6200, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 6200, ओके। सो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पूरा, ओके। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया हो, एंड इफ़ यू एनी डाउट डू let me know in the comment section. If you like the video, give the thumbs up, okay. Thank you, and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon to get the notification whenever I upload the video. Thank you.